Hmm. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, class. Good afternoon, beta. Good afternoon, बच्चे. Fine. Shall we start with geography, or you would like to continue with the civics only? Ma'am, civics. Ma'am, civics only. Okay. Fine. Now, what exactly we were doing in civics, please tell. Ma'am, I am reading the Political party. Ma'am, in the first class, there was a lot of network issue. I was also getting out again and again. I know. I don't know. Something happened because my son, he was also complaining कि बार-बार मैं meeting से out हो जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? I said you keep trying connecting. Good afternoon, beta. Don't know. Maybe अब ये चीजें ऐसी है ना, इसमें हमारा तो ह्यूमन हैंड कुछ भी नहीं है. टेक्निकल चीजें हैं, तो आई थिंक सम टेक्निकल इश्यूज वर देयर, राइट? सो shall I share the book with you people? No, ma'am, we have. Ma'am, we have the book. We have. अच्छा, शेयर करने से थोड़ा ये रहता है कि भाई पता रहता है कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you can share. Ma'am, you can share. Good morning, ma'am. लाइए हम Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून बच्चे. क्या बात भाई, अभी आप पहली क्लास? ma'am. गुड आफ्टरनून विदेश. हाँ, Ma'am, क्या चीज? you were not in the previous class beta. Where were you? Ma'am, I was in the previous class. Actually, ma'am, my mic was not working. Ma'am? हाँ जी, your mic was not working. Yes, ma'am. मेरा network problem भी हो रहा था थोड़ा बहुत. चलो वो सभी के साथ था आज, तो चलो एग्रीड, हम मान सकते हैं हो रही होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि सुबह से ही इवन क्लास 9th स्टूडेंट आल्सो दे वर कंप्लेनिंग कि मैम कुछ और कुछ प्रॉब्लम चल रही है. ऐसे फाइन. हम बीच में अपने आप कनेक्टिंग लेके आ जाता है. हाँ, वो पता नहीं, Yes, ma'am, disconnect भी हो रहा है. डिस्कनेक्ट हो जाता है. बिल्कुल सही कह रहे हो. आज तो मैंने भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करी है. चलिए, वो पीडीएफ पता नहीं कहाँ खो गया है. आई एम नॉट एबल टू. चलिए, नो प्रॉब्लम्स. I will explain. अच्छा, I think Puneet was reading, right? Yes, ma'am. जहां तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है वहां तक पढ़ लिया था आपने? Ma'am, I was reading the meaning. चलिए ठीक है, you start from there. Right. Meaning. Start reading. Yes, ma'am. A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. Since there can be different views on what is good for all, parties
try to persuade people why their policies are better than others. They seek to implement these policies by winning popular support through elections. Thus, parties reflect fundamental political divisions in a society. Parties are about a part of the society and thus involve partisanship. Thus, a party is known by What is which part partisanship? Beta, partisanship, if you remember that time also I told you, when a person is Yes, strongly ma'am, you committed to told. a party or a group or a fraction, that person has a tendency of, uh, being biased towards that particular party only. And if the people Okay, try ma'am. to, highlight the loopholes also, then also the person is not very much convinced. Yes, ma'am. Actually, the at that time I got disconnected. No issues, beta. thus a party is known by which part it stands for, which policies it supports, and whose interest it upholds. A political party has three components. First, the leaders. Second, the active members. Third, the followers. The I'm right. I'm the followers. followers. Very good. Anything in this to be explained, class? Ma'am, No, ma'am. No, ma'am. Anshu? ma'am, Yes. ma'am, what is the difference between members and active members? नहीं, एक्टिव मतलब मेंबर्स बेटा वो होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली जो है पार्टीज की जो भी पॉलिसीज होती है उनको प्रमोट करते रहते हैं. दे मूव अलोंग विद पीपल. दे गो they go to various places where they could educate people about the policies of the party, so that when the next elections are there, these political parties, they are chosen by the voters to form Ma'am, the. but only members is also same. No, the leaders are also there. Members means आप उसका पार्ट हो, पर एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो एक्चुअली जो है उनके लिए काम करते हैं. जैसे हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं. वो एक मूवी हमने देखी थी, रंग दे बसंती, जो कि बहुत पॉपुलर मूवी थी. उसमें देयर वाज अ पर्सन who played the role of, I think, who initially did not like the group to which these people belong, but later on he starts accompanying them for everything that they were doing, because he felt that whatever these people are doing, it is a for a right cause, for a correct cause. So he was from a particular political party, and he was a very active member of that party. लोगों के बीच में awareness डालना कि भाई इस पार्टी का ये एजेंडा है, इस पार्टी का ये मोटिव है, इस पार्टी की ये पॉलिसीज हैं, इलेक्शंस में आप इस पार्टी को लेके आइए, आपका वेलफेयर करेगी, ये आपके लिए ऐसा करेगी, आपके लिए वैसा करेगी. तो उसका जो रोल दिखाया गया है इस मूवी में एज अ पार्टी एक्टिव मेंबर, ये दिखाया गया है कि हाउ डिवोटी ही वाज टुवर्ड्स हिज पॉलिटिकल पार्टी. क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली उस पार्टी को सपोर्ट करता था, तो वो लोगों के बीच में भी अपने जो भी उस पार्टी के प्रिंसिपल्स थे या जो भी उसकी पॉलिसीज थी, उनको वो खुद भी रिलीजियसली फॉलो करता था. तो एक्टिव मेंबर्स का बेसिकली काम क्या होता है? टू कीप द पीपल अपडेटेड. पार्टी में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं या जो भी चेंजेस होते हैं रिगार्डिंग दी पॉलिसीज एंड दी प्रोग्राम्स, वो लोगों को बताते हैं, जिससे कि लोग अवेयर रहें, और लोग जो है नेक्स्ट इलेक्शंस में जब गवर्नमेंट बनाने की बात आती है, तो दे आर एक्चुअली वोटिंग फॉर देम, सो दैट दे कैन कम टू पावर. उनका मेन मोटिव ये होता है लोगों को ये अवेयर करना, ये बताना कि कैसे हम आपके लिए, आपके वेलफेयर के लिए काम करेंगे. राइट? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Excuse me, ma'am. Yes, Gargi. Ma'am, what is meant by the line, a party is known by which part it stands for? भाई देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल बीएसपी की, बीएसपी जो पार्टी है, आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा है कभी? भारतीय बहुजन समाज पार्टी जो है, ये जो पार्टी है, इट वाज फॉर्म्ड बाय कांशीराम. ठीक है? उसके कांशीराम बीएसपी के लीडर थे, मेन फाउंडिंग लीडर थे. और इन्होंने क्या करा, इस पार्टी को किस लोगों को बीच में दिमाग में रख के बनाया गया? जो दलित थे, जो आपके डिप्राइव्ड क्लासेस थी, उनको ध्यान में रख के इस पार्टी को बनाया गया. तो जब ये पार्टी को बनाया, तो
कह रहा है ना, अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, मतलब लीडर्स की वजह से है, एक्टिव मेंबर्स की वजह से है, फॉलोअर्स की वजह से है, या उनकी जो आइडियोलॉजी है उसकी वजह से है, वो उनका उनका क्या इंटरेस्ट है। जैसे जब बीएसपी बनी तो इंटरेस्ट ये था कि जो डिप्राइव्ड ऑफ क्लासेस हैं, जिनका की बहुत ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन दी अमंग द पीपल इन द कंट्री विद द पॉलिसीज, उनको जो है सपोर्ट करा जाए। ठीक है, उनके लिए ऐसा कुछ करा जाए कि उनको जो है ओवरऑल सपोर्ट मिले, वो भी अच्छे से ग्रो और डेवलप कर सके, जैसे बाकी लोग ग्रो और जो है जैसे बाकी लोग जो है ग्रो कर पाए हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है और सपोर्ट वाला पार्ट जो है, जैसे बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो बीएसपी का मेन जो है वो ये होता है कि भाई जो जितनी भी डिप्राइव्ड ऑफ क्लासेस हैं, जिनको कि एक्चुअल में उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या उनको जो है पॉलिसीज अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट पॉलिसीज का, उनके लिए वो काम करती है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का जो है शुरू से मोटिव क्या रहा है? एनीबडी हु कैन टेल? I'm working for Muslim leaders. नहीं बेटा, नहीं, नॉट एट ऑल। जैसे जो जब हम बात करते हैं कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है। ठीक है, तो मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी रिलीजन के प्रति बायस नहीं होंगे, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, और हम अपने कंट्री को एक मॉडर्न नेशन बनाएंगे। मॉडर्न नेशन का मतलब हम वो हर फैसिलिटी, हर वो चीज अपने लोगों को, अपने कंट्रीमैन को प्रोवाइड कराएंगे, अवेलेबल कराएंगे, जो कि उनकी ग्रोथ में उनको हेल्प करे। आई होप आई एम क्लियर। मैम पर ये तो सभी मेजर पार्टीज का ऑब्जेक्टिव होता है, बट ऐसा होता है ना कि अगर आप बात करो, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि रीजनल पार्टीज की भी अगर हम बात करते हैं, कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि अपने जो भी पार्टी के प्रिंसिपल्स हैं उससे इतर हट के थोड़ा काम करती हैं। मींस दे आर नॉट वेरी मच व्हाट एग्जैक्टली द पॉलिसी ऑफ द पार्टी स्टैंड्स फॉर, वो थोड़ा सा उसमें जो है पर्सनल वो आ जाता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो फिर वो चीज थोड़ी गलत हो जाती है ना। अदरवाइज नो डाउट्स। अब जैसे अगर हम बात करते हैं आपका कम्युनिस्ट पार्टी की, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है कम्प्लीटली आपका मार्क्सिस्ट और लेनिन की थ्योरीज को फॉलो करता है, कि मतलब एक ऐसा समाज होना चाहिए जहां पे कि भाई जो आपका उसका अगर आप सिंबल देखो सीपीआईएम का, उसका सिंबल क्या है? सिकल है। सिकल और क्या है बताओ? Don't know. Nobody knows. देखो सीपीआई का हैमर। सिकल और हैमर है, और जो सीपीआईएम जो है सिकल और हैमर है उसका, और जो सीपीआई है उसका सिकल और जो है वो आपका गेहूं की बालियां हैं, उसमें 3 वो दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो है उन लोगों को ये बेसिकली क्या है कि जो ओवरऑल जो आपके रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है वो सबके हाथ में रहे, प्रॉफिट सबको मिले, सोसाइटी में ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इक्वली सबके साथ बराबर हो, उस चीज को फॉलो करके चलती है। ठीक है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं जो फार्मर्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, राइट गार्गी? Yes, ma'am. तो बस ये है कि बहुत कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने उससे भटक जाती हैं, जो उनके एक्चुअल में जो मोटिव्स होते हैं। ठीक है, और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि कंप्लीटली थ्रू आउट अपने प्रिंसिपल्स, अपने आइडियोलॉजीज के साथ ही स्ट्रिक्ट रहती हैं। हालांकि सब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा ही करती हैं, बट sometimes some leaders they tend to be biased. ठीक है, तो इस बायसनेस की वजह से क्या होता है, पार्टी लूजेस द इन्फ्लुएंस। ठीक है, अगर आप देखो पास्ट में बहुत सारा, अगर हम कांग्रेस का इतिहास उठा के देखते हैं, कांग्रेस वाज वन सच पार्टी जिसने की, मुझे लगता है पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात करी जाए तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट ही जो है पावर में रही है। बट क्योंकि उनके जो लीडर्स थे, जैसे जैसे लीडर्स आए, सबका जो है माइंडसेट, देखो हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। एक यूथ जो होता है ना, यूथ के हाथ में जब आप बागडोर देते हो किसी चीज की, तो यूथ का काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, और जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं उनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो ये बस सिर्फ इस डिफरेंस की वजह से अगर आप देखो तो आज की डेट में नो डाउट्स कांग्रेस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड अमंग पीपल, बट फिर भी आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है ना
वो रिलेट नहीं कर पाते हैं पार्टी की पॉलिसीज से, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है जैसे ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है, क्योंकि आप अगर देखो हमारे कंट्री में इतना ज्यादा वेरिएशन है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि अगर आप ये सोचो कि हर इंसान सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगा तो नॉट पॉसिबल. There are different groups of people, those who support different political parties. पर ultimately support सबसे ज्यादा उसी को मिलता है जो कि ज्यादातर वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में सोचता है, नॉट वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, Yes, ma'am. तो जहाँ पे वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल आ जाता है वहां पे फिर लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं. क्योंकि देखो बेटा, सीधी सी बात है, हमारा जो देश है इतना डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे हर तरीके का आदमी है, बहुत इंटेलेक्चुअल भी है, बहुत ज्यादा पुअर भी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि केवल इसलिए कि किसी ने उनसे कहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करो तो वो करते हैं, और वो इस लालच में भी आ जाते हैं कि भाई उनको जो है उसका पूरा जो है प्रॉफिट मिलेगा, या उनको देखा जाएगा, उनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा. पर जब ऐसा नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हर्ट फील करते हैं, और ये जो हर्ट वाला जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंसान को इम्पैक्ट करता है. आप किसी जरूरतमंद से बोलो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बच्चे का, आप किसी बच्चे से ये कह के काम करवाओ कि बेटा इतना काम करो तो हम तुमको तुम्हारा फेवरेट टॉय खरीद के देंगे, और जब आप मार्केट जाते हैं और बच्चा जब कहता है कि आपने प्रॉमिस करा था लाओ ये दो, तो आप सिर्फ ये कह के बच्चे से कह देते वो तो मैंने तुमसे काम करवाने के लिए कहा था. तो उस बच्चे की मेंटल लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम नहीं समझ सकते हैं. ये वो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा, बट जनता तो बच्चा थोड़ी ना है. बेटा जनता एक तरीके से बच्चा ही है बेटा. आप देखो हम इतने बड़े होने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक वो बचपने वाली चीज रहती है, और कई बार क्या होता है हम वी टेंड टू बिहेव लाइक चिल्ड्रन. होता है कि नहीं होता है? जनता तो बच्चा नहीं है, बट कई बार क्या होता है कि हम Yes, ma'am. इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि हमारे अंदर का जो वो बच्चा होता है ना, वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है कि सामने वाला जो कह रहा है कि तो वो वही करेगा, इसलिए हम उसी के साथ जाएंगे. पर जब वो हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती है, जो जिस तरीके से हमें समझाया जाता है, हमें बताया जाता है, तब कहीं ना कहीं हम हर्ट होते हैं, और फिर हमारा जो एक विश्वास वाली चीज होती है ना, वो एकदम खत्म हो जाती है. और भरोसा खत्म होना इज द वर्स्ट थिंग. किसी बच्चे के अंदर अगर, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को अगर आप चाहते हो कि बच्चा लगातार प्रगति करता रहे, लगातार प्रोग्रेसिव रहे, तो आपको उसके लिए उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करके रखना पड़ेगा. और वो कॉन्फिडेंस अगर शेक हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट, ये बहुत बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है उस बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए. तो ये सेम चीज हमारे वोटर्स के ऊपर भी लागू होती है. हमारे वोटर्स भी जो है बहुत हर्ट फील करते हैं जब उनके लीडर्स उनकी जो प्रॉमिसेस उनको की होती है उनको फुलफिल नहीं करते. जैसे हमने आप लोग को आई थिंक आपको बताया था कि व्हेन आई वाज इन क्लास 3-4 आई स्टिल रिमेंबर, उस टाइम पे हरियाणा में लाइक नियर इन माय नानी जीज वेयर माय नानी जी यूज्ड टू लिव, माय ग्रैंडमदर, elections were approaching, and many of the leaders, they were coming to the village for election campaign and all. One such leader, now I don't remember his name only. One such leader came and he promised, like before somewhere in 80s, there was no water supply in my Nani ji's village. So that leader promised that I will ensure there is a regular supply of water. You people don't have to go to wells to carry the water, this and that. Elections came, everyone voted for that particular leader, and after the election got over, for 5 years, continuous 5 years, nobody turned up. Matlab not even the members, not even the what do you call them, उनको क्या बोलते हैं हम, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लीडर्स हो गए वो तो हो ही गए, उसके अलावा जो उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो तक झांकने नहीं आए गांव में. तो एवरीबडी वाज सो इनॉयड. तो जब नेक्स्ट ईयर जब 5 इयर्स के बाद जब इलेक्शंस ड्यू हुए, तो अगेन वो सिलेक्शन टाइम में वी हैड आवर समर ब्रेक, अगेन वी वेंट देयर टू अवर नानी जी's हाउस. वी सॉ दीस पीपल वर कमिंग, nobody allowed them to enter the village premises. उनको रास्ते सारे बंद कर दिए और कहा आप लोग हमारे गांव में नहीं घुसेंगे. तो कुछ लोगों ने कहा भाई क्या बात हो गई, हम तो आपके भले के लिए आ रहे हैं. तो बोले 5 साल पहले आपने जो भला करा था, बोले आज तक उसको हम भुगत रहे हैं, अब हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते. तो
ये कहीं ना कहीं वो उस बच्चे के भरोसे का ही तो वो हुआ, कत्ल हुआ कि भाई ये क्या करा आपने, आपने प्रॉमिस करा कि आप जिस चीज से वो सबसे ज्यादा परेशान थे, आपने उस मुद्दे को उठाया और उस मुद्दे को आपने पूरे 5 साल में नोबडी बॉदर्ड टू इवन कम बैक एंड आस्क कि भाई आया कि नहीं आया सप्लाई, क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं। टैप्स लगा के छोड़ दिए गए इन द फर्स्ट ईयर, और उन टैप्स को वो बाकी 4 साल वो टैप्स ऐसे ही पड़े रहे, कुछ गायब हो गए, कुछ लोगों ने उठा के उनको बेच दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो मतलब जनता को लगा कि हमें जो है पूरा फुल फ्लेज बेवकूफ बनाया गया। तो उन्होंने नेक्स्ट उसके बाद उन लोग पूरे गांव वालों ने जो है ये एक तरीके से कहते हैं ना कि ये डिसाइड कर लिया कि इस पॉलिटिकल पार्टी को तो हम कभी पावर में लाएंगे ही नहीं, वॉट एवर मे का। और ऐसा ही करा उन लोगों ने। फिर नेक्स्ट ईयर जब आफ्टर 5 years जब इलेक्शन हुए, आई थिंक कांग्रेस पार्टी आई थी कि जाने कौन सी आई थी, तो बिकॉज दे न्यू कि भाई पिछली वाली पार्टी के साथ क्या हुआ, तो सबसे पहले जो है टॉप प्रायोरिटी पे गांव में जो है टैप्स लगाए गए, टैप्स में वाटर सप्लाई इंश्योर किया गया। उसके बाद फिर आफ्टर एवरी 6 months और 7 months कोई ना कोई आता था जस्ट टू आस्क कि भाई कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहे हैं गाँव के लोग। तो जब हम इस तरीके की उसमें होते हैं भाई, जहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, तो ये जो नेता लोग होते हैं, दे आर लाइक सर्वेंट्स टू पीपल, in the sense they are supposed to look after them, they are supposed to take care of the welfare of each and every individual, because they know that these people are the only one who are going to bring them to power again in the next elections. They cannot sit with their eyes shut and with their mouths closed कि भाई हमें नहीं पता, ऐसा नहीं कर सकते ये लोग, ये चीज गलत है। नो डाउट्स वी हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, बट फिर भी जो चीज एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो बेटा वो बहुत जरूरी होती है। ये होता है ना, गिव एंड टेक वाला प्रोसेस होता है ये। अगर आप लेते ही जाओगे केवल और दोगे कुछ नहीं, तो भी एक टाइम ऐसा आएगा दैट पीपल विल स्टॉप ट्रस्टिंग यू। और अगर आप किसी को सिर्फ दे ही रहे हो, वो आपको उसके बदले में कुछ आपको मिल नहीं रहा है, तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक गिव एंड टेक प्रोसेस है जो कि साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चलता है। अगर ये साइड बाय साइड नहीं चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। जैसे यहाँ पे हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स का मतलब ये हुआ कि भाई, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं जो कि कास्ट बेस्ड हैं या रिलीजन बेस्ड हैं, तो ये बेसिकली उन लोगों के इंटरेस्ट को ही अपहोल्ड करते हैं। तो इसमें इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी फॉर्म करी गई है तो उसमें पॉलिसीज क्या हैं और वो किसके इंटरेस्ट को ज्यादा एम्फेसाइज करेगी। ठीक है। यस Yes, ma'am. नेक्स्ट, कैन वी हैव नैना रीडिंग नाउ? Ma'am, may I? चलो हिमांशु आप पढ़ लो। Okay. Functions. What does a political party do? Basically, political parties fill political offices and exercise political power. Parties do so by performing a series of functions. First, parties contest elections. In most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by political parties. Parties select their candidates in different ways. In some countries, such as the USA, members and supporters of a party choose its candidates. Now, more and more countries are following this pattern. In other countries like India, top party leaders choose candidates for contesting elections. ओके, Should I continue? नहीं रुको बेटा, एनीथिंग इन दिस टू बी एक्सप्लेन्ड? फर्स्ट पार्ट No, ma'am. hearing understood? No, ma'am. USA part. Yes, ma'am. यस बेटा, गार्गी बोलो। Ma'am, the USA part. ओके, कह रहा है पार्टी सेलेक्ट द कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज इन सच कंट्रीज। अच्छा, जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ये जो यूएसए वाला एग्जांपल है ना, इसमें इन्होंने कहा है कि जो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, इसमें जो मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी होते हैं और जो सपोर्टर्स होते हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। जैसे अगर आप देखो 2014 में जो इलेक्शंस हुए 2014 में, उस टाइम पे कांग्रेस, उससे 2014 में जब इलेक्शंस हुए उससे पहले कांग्रेस वाज इन पावर, राइट? Yes, ma'am. Yes अब ma'am. 2014 के इलेक्शंस में क्या हुआ, बीजेपी
जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो बीजेपी एक मेजोरिटी के साथ जो है केम टू पावर। अब वो मेजोरिटी ऑफ वोट्स जो मिले उसका मोटिव वो उसमें क्या हुआ कि पीपल जनरली क्या होता है जब इलेक्शंस लड़े जाते हैं तो ये नहीं बताया जाता है कि किसको प्राइम मिनिस्टर या किसको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। पर बीजेपी ने क्या करा, बीजेपी ने बहुत क्लियरली ये कहा कि अगर बीजेपी इस बार इलेक्शन जीतती है तो नरेंद्र मोदी जी जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। एंड पीपल न्यू अबाउट हिज वर्क, द वे ही हैंडल्ड थिंग्स इन गुजरात consecutively three terms के लिए he was the chief minister of Gujarat, right? तो जब लोगों को ये पता चला कि भाई नरेंद्र मोदी को खड़ा करा जाएगा एज प्राइम मिनिस्टर, वो आएंगे, तो क्या हुआ अल्टीमेटली लोगों का जो जितने भी लोग थे उनका सपोर्ट जो था वो अल्टीमेटली बीजेपी के पास चला गया। ठीक है, भले ही जैसे बहुत से लोगों ने वोट करा तो उनको इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं था कि वो किसके लिए वोट कर रहे हैं, उनको सिर्फ इतना पता था कि वो बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं ओनली सो दैट नरेंद्र मोदी कम्स टू पावर। अब जब नरेंद्र मोदी जी जीत गए, जब वो पावर में आ गए, लोगों से पूछा गया कि भाई आपने क्यों, जब ये जो ट्रेंड है जो कि जो यूएस में था, ये ट्रेंड हमारे कंट्री में भी आ गया है। वो अलग बात है कि कुछ जगह कुछ पार्टीज में अभी भी टॉप लीडर्स ही कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, बट ये ट्रेंड हमारे कंट्री में भी धीरे धीरे आ रहा है कि जो लोग हैं वो ये बताएं कि भाई किसको वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। उसका रीजन सीधा सीधा ये है कि कोई भी कैंडिडेट कितना पॉपुलर है अमंग द पीपल, जितना ज्यादा वो पॉपुलर होगा उतना ज्यादा उसको सपोर्ट या उसको वोट मिलेगा। ठीक है, तो यूएस में जो स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है, जो मेंबर्स होते हैं जो मेंबर्स होते हैं पार्टी के और जो सपोर्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसको हमें प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ठीक है, जैसे बराक ओबामा आए थे तो ये लोगों ने डिसाइड, ये मेंबर्स और सपोर्टर्स ने डिसाइड करा था दैट वी वांट हिम टू बी द प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो उनका नाम जो है वो दे दिया गया नॉमिनेशन में। ठीक है, पर हमारे कंट्री में अभी ये ट्रेंड बहुत ज्यादा नहीं आया है, बट 2014 के इलेक्शंस में हमने इस चीज को देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम जो है वो हाईलाइट करा फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री दे वोटेड इन द नेम ऑफ श्री मोदी जी, नॉट इन द नेम ऑफ बीजेपी। उनको ही पता था कि भाई बीजेपी से बिलोंग करते हैं नरेंद्र मोदी जी, इसलिए हमें बीजेपी को सपोर्ट करना है ताकि वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए। क्लियर हुआ गार्गी? Yes, ma'am. Can we have Abhay reading? Ma'am, Ma'am, may I read? Jigyasa? Ma'am, Naina, ma'am, that time my mic was not working. I was reading, but due to some network issue. कोई कुछ कह रहा है क्या? ma'am, me. हाँ बोलो बेटा। Ma'am, can you please explain the above figure? बेटा आपकी आवाज हिमांशु बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हो, जोर से बोलो थोड़ा बच्चे। Ma'am, can you please explain the above figure? Can you please explain the above figure? Figure. Yes, ma'am. This one. रुको एक मिनट। कह रहा है where have all our leaders come at a time like this? अब अगर आपने देखा हो कि जो इलेक्शन कैंपेन होता है उस टाइम पे हर कोई बाहर निकल के आ जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखते हैं जो कि हमें पूरा कभी दिखते ही नहीं है 5 साल में, किसी भी पार्टी को जो बिलोंग करते हैं। Okay, ma'am. ध्यान है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जिनको कि हमने कभी नहीं देखा होता है, पर जब इलेक्शन कैंपेन होता है तो अचानक से सब लोग आ जाते हैं। हम स्टेज पे 2 या 3 लीडर्स की बजाय 10-12 लीडर्स का जो है भीड़ देखते हैं और लगता है अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, इनको तो हमने कभी देखा नहीं। उस एरिया के लोग कहते हैं भाई ये तो कभी हमें दिखे नहीं, आप ये भी कभी दिखे नहीं, ये भी कभी दिखे नहीं। तो ये चीज इसमें ये आयरनी बताई गई है। आर.के. लक्ष्मण जो है ब्रशिंग अप द इयर्स। ठीक है, Okay. Okay, Naina, can we have you reading? Yes, ma'am. Ma'am, from the third point. No, second point. Okay, ma'am. Excuse me, Parties put forward different policies and programs, and the voters choose from them. Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society,
but no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which the policies can be formulated by the government. This is what the parties do. A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. चलिए, इतना समझ में Ma'am, आया? may I continue? Wait. This second point is clear to everyone? Yes, ma'am, understood. Yes, Any ma'am. doubts? All clear and understood, no? Yes, ma'am. No doubt. चलो, carry on, Naina. Third, parties play a decisive role in making laws for a country. Formally, laws are debated and passed in the legislature. But since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinions. Third point is clear or not? Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am. Do I need to explain this point? They are simply telling you that when political party, when it comes to power and forms the government, then they play a very decisive role in making the laws for the country, right? Yes, ma'am. चलिए, Ma'am, may I continue? हाँ जी, continue बेटा. Fourth, parties form and run governments. As we noted last year, a big policy decisions are taken by political executive that comes from the political parties. Parties recruit leaders, train them, and then make them ministers to run the government in the way they want. Carry on. Fifth, those parties that lose in the elections play a role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing governments for its failures or wrong policies. Opposition parties also mobilize opposition to the government. Six, parties shape public opinion. They raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of society. Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems facing by people. Often opinions in the society crystallize on the lines of party state. Ma'am, please explain this point. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am, the last line, ma'am, last. So last line, Yes, ma'am. No, ma'am, the full. full paragraph. Ma'am, no, ma'am. Whole point. चलिए, कह रहा है पार्टीज दे शेप पब्लिक ओपिनियन. अगर आपको पता हो तो क्या होता है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज होती है ना, इनका रोल एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रोल माना जाता है. इफ द अपोजिशन इज गुड, तो ऐसा माना जाता है कि जो गवर्नमेंट वर्क कर रही होती है उसके काम में और जो है इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, इम्प्रोवाइजेशन होते रहते हैं. जैसे जब आप एग्जाम देते हो, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, फिर आपको ये पैराग्राफ समझाती हूँ. जब हम एग्जाम में परफॉर्म करते हैं तो जब हमें हमारे ड्रॉबैक्स बताए जाते हैं, हमारे लूपहोल्स बताए जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर गिविंग एग्जाम्स, व्हाट डू? वी कीप दोज पॉइंट्स इन माइंड एंड वी वर्क अकॉर्डिंगली. करते नहीं करते हैं क्लास? Yes, ma'am. है ना? अब जैसे अगर हमें पता है कि हमने कोई आंसर लिखा है जिसको कि बहुत ही क्रिटिकली देखा जाएगा, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम उन पॉइंट्स को याद रखते हैं जो हमें टीचर ने बताया होता है क्लास में काम पढ़ाते समय. तो ठीक ऐसे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वेदर द रूलिंग पार्टी और द अपोजिशन पार्टी, दोनों ही पार्टीज का जो है अपना अपना रोल होता है. जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, जो रॉन्ग पॉलिसीज होती है उनको हाईलाइट करती है, उनके फेलियर्स को हाईलाइट करती है. अब जब वो हाईलाइट करती है, उनका मोटिव क्या होता है, टू क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट. ठीक है. अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो जो रूलिंग पार्टी होती है मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस क्रिटिसिज्म.
They should improve next time when they launch something or when they make their policies. They should always keep in mind that next time when they last time then when they made the policy, it was criticized on what grounds. So those grounds are to be improved, right? So here they are talking about the opposition party. They play a very important role in shaping the public opinion. If the parties are not working, they aware them. They impart them knowledge that this political party, the government that we have, is not working for the welfare of the people. See, the policy that was brought by the government, it has these many loopholes. Where is the welfare of the public highlighted? Nothing. They are simply focusing on their own welfare. So this way they try to shape the public opinion. And next time when the elections are there, what do? They remind people of the same. And if the people are not satisfied with the ruling government, what do? They tend to bring another political party to form the government. Coming to the fourth line, many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of society. अगर आप देखो ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इन प्रेशर ग्रुप्स का काम होता है कि सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है या जो भी पॉलिसी बनाई है उसको वो क्रिटिसाइज करें और वो अपने क्रिटिसिज्म के थ्रू उनको प्रेशराइज करें टू चेंज द डिसीजन. अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपका ये जो हम स्टेट गवर्नमेंट का बताते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जब ये हो गया, ये काफी टाइम, मुझे ईयर अभी याद नहीं है, ये इट इज अबाउट द अबाउट द अपॉइंटमेंट इन द बेसिक टीचिंग. जो आपका बेसिक स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो बेसिक स्कूल्स हैं, उनमें टीचर्स की अपॉइंटमेंट के लिए था. सरकार ने योजना निकाली, बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा लगा दिया. ठीक है, अब क्या हुआ? जब सरकार बदली तो जो पॉलिसी जो चीज पहले वाली गवर्नमेंट ने इनिशिएट करी थी, उस जो नई गवर्नमेंट आई उसने उसके ऊपर काम ही नहीं करा. लोगों ने जाके क्या करा? उस पे कंप्लेंट्स करी, कोर्ट में केस करा. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, जो उस समय पावर में थी, उस गवर्नमेंट ने उस पे जो है कुछ तवज्जो दी और कहा कि ठीक है, अगर पिछली सरकार ने ऐसा काम करा था, जो आपका जो हाई कोर्ट था उसने ऑर्डर्स दिए कि भाई आप उस पर दोबारा से देखो, उसको करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भविष्य उस पर टिका हुआ है. तो अब क्या हुआ कि ये जो भी ग्रुप्स थे जिन्होंने कंप्लेंट फाइल करी, ये प्रेशर ग्रुप की तरह इन्होंने काम करा. गवर्नमेंट के उस डिसीजन को कि भाई हमें पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसी को नहीं इनिशिएट करना है, उसको बदल दिया. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. अब कई बार क्या होता है सोसाइटी में जब अपोजिशन, हाँ जी बेटा कुछ कहा बच्चे आपने? No, ma'am, I said it's clear. हाँ, अब लास्ट टाइम में कह रहा है कि कई बार क्या होता है, जो सोसाइटी जो भी ओपिनियन पार्टी लेती है वो सोसाइटी के जो ओपिनियन होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होती है. कई बार क्या होता है, बहुत माइन्यूटली चीजों को देखना पड़ता है, हमें हर चीज का लूपहोल देखना पड़ता है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं. तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पब्लिक की ओपिनियन को कैसे शेप करेगी, वो उसको पब्लिक की ओपिनियन, जो सोसाइटी में जो ओपिनियन होती है लोगों की, उसी के लाइन पे वो अपने काम को भी करती है, उसी पे वो अपने डिसीजंस को बेस्ड करती है. आई होप दिस इज क्लियर. Yes, ma'am. ठीक है, मतलब जो भी ओपिनियन सोसाइटी की होती है अबाउट अ पर्टिकुलर पॉलिसी, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है या जो रूलिंग पार्टी है या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको उन गाइडलाइंस पे काम करना पड़ता है, उनको उस चीजों पे काम करना पड़ता है जो कि लोगों को लगता है कि भाई गवर्नमेंट जिसको कम्प्लीटली निग्लेक्ट कर रही है. तो जब ये जितने भी ये जो आपके जो फॉलोवर्स और जो मेंबर्स होते हैं ना, एक्टिव मेंबर्स, ये जनता के पास से ये पब्लिक में बहुत ज्यादा जो है एक्टिव होते हैं, ये लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर करते हैं अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी राय है, क्या किस तरीके से वो देखते हैं जो गवर्नमेंट कर रही है. तो ये इसलिए होता है ताकि गवर्नमेंट भी बेटर वर्क कर सके और जो लोगों की जो एक्चुअल ओपिनियन है वो गवर्नमेंट को पता चल सके एंड गवर्नमेंट कैन वर्क ऑन दोज लाइंस. राइट? Yes, Right, ma'am. class? Yes, Okay. ma'am. We are left with just 1 minute, less than 1 minute, so we can read the next paragraph that we have. गार्गी आप पढ़ दो बेटा जोर से. Yes, ma'am. Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by governments. For an ordinary citizen, it is easy to approach
a local party leader than a government officer. That is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. Parties have to be responsive to people's needs and demands, otherwise, people can reject those parties in the next elections. ये इसकी explanation हम next उसमें करेंगे. Meeting is about to end any moment. I hope Okay, ma'am. everything that was done today. Yes, class. Yes, ma'am.